بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا سیکنڈ آن لائن لیکچر ہے۔ ہم فرسٹ چیپٹر آف پاک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ سوال یہ ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے اور نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی پر نوٹ لکھیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی سے کیا مراد ہے۔ تو اجزائے ترکیبی سے مراد وہ عناصر ہیں یا وہ بنیادی اصول ہیں یا وہ لوازمات ہیں جن سے مل کر نظریہ پاکستان کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا، آج بھی آپ اس پر جو ہے فوکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اپنے پاس کوئی کاپی یا رجسٹر رکھ لیں تاکہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ اسے نوٹ کرتے جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظریہ کا معنی و مفہوم۔ آپ نے ہیڈنگ اسی طرح لکھنی ہے اور انورٹڈ کاماز میں آپ نے عبارت لکھنی ہے۔ تو نظریہ کا معنی و مفہوم کیا ہے بچوں؟ کسی سیاسی نظام کی فکری اساس کو متعین کرنے کا نام نظریہ ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی سیاسی نظام کی فکری اساس کو متعین کرنے کا نام نظریہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ آپ اسی طرح کاپی یا رجسٹر پر اس کو نوٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک سکیچ بنا ہوا ہے۔ اس سکیچ کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ دیکھیں، جنگ آزادی 1857 کے بعد پورے برصغیر پر انگریز حکمران بن کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر دو بڑی قومیں تھیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اپنا مذہب ہے اور رسم و رواج ہیں، جبکہ ہندوؤں کا اپنا کلچر ہے، زبان ہے، مذہب ہے اور رسم و رواج ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک مختلف نظریہ ہے، جبکہ ہندو قوم کا بھی ایک مختلف نظریہ ہے۔ اب دو مختلف نظریات، دو قومیں موجود ہیں، تو یہ دو قومیں مل کر نظریات کے حوالے سے بناتی ہیں دو قومی نظریہ۔ تو بچوں، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے بارے میں مختلف مفکرین کی کیا رائے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے کیا ارشادات ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے قائد اعظم کا قول ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ آپ نے اس کو ایز اے شارٹ کوسچن یاد کر لینا ہے، کیونکہ امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ بہت اہم ہے۔ یہ دیکھیں، قائد اعظم کے مطابق قائد اعظم نے فرمایا تھا، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے
ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। आपने इसको इसी तरह नोट करना है और इबारत इसी तरह लिखनी है और याद करनी है। तो बच्चों, ये जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कुछ अक़वाल थे। यानी जैसे हेडिंग में ये आप देख सकते हैं कि हेडिंग क्या थी। हेडिंग में आपने इसी तरह लिखना है कि पहले नज़रिया का मानी मफ़हूम, फिर नज़रिया पाकिस्तान मुफ़क्किरीन की नज़र में, फिर कायद-ए-आज़म के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के मुताबिक, और उसके बाद बात करेंगे अज्ज़ाए तरकीबी के। तो अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से ये आपका एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सवाल आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी लिखें। तो नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं, जो कि हैं अकायद व इबादात, नंबर 2 जमहूरी अक़दार का फ़रोग़, नंबर 3 मुसावात और माशरती इंसाफ़, नंबर 4 शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, नंबर 5 अख़ुवत व भाईचारा। इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और रवादारी भी लिख सकते हैं। अब हम इन तमाम अज्ज़ाए तरकीबी को स्टेप बाय स्टेप इनको हम फोकस करते हैं और इन पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं अकायद व इबादात क्या हैं। पाकिस्तान के क़याम के मुतालबा का मकसद था कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इबादात की अदायगी में कोई रुकावट ना आए। अब अकायद क्या हैं? जैसे अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखरत, आखरत पर ईमान। बच्चों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 114 सूरतें हैं, जिसमें 86 सूरतें 88 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। अब मक्की सूरतों में अकायद की बात की गई है, जबकि मदनी सूरतों में इबादात की बात की गई है। अकायद क्या हैं? अक़ीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना। अक़ीदा रिसालत, आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा, रसूल और आखिरी नबी मानना। अक़ीदा आखरत क्या है? कि मुसलमानों को ज़िंदगी दी गई है, इसके बाद उनको मरना है, यानी इंसानों को मरना है, और इसके बाद एक दूसरी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। उस ज़िंदगी में हिसाब व किताब होगा और अल्लाह के हज़ूर पेश किया जाएगा। तो ये अक़ीदा आखरत है। इसी तरह इबादात क्या हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और बाकी इबादत, जिसमें जिहाद भी शामिल है। तो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से अकायद व इबादत इसलिए अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल हैं कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इबादत की अदायगी में कोई रुकावट ना आए। अब बच्चों, दूसरे नंबर पर है जमहूरी अक़दार का फ़रोग़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जमहूरियत या जमहूरी अक़दार क्या हैं। जमहूरियत का मतलब है कि ऐसा निज़ाम जिसमें मुशावरत की जाए। रिपीट करता हूँ कि जमहूरियत का मतलब है एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुशावरत की जाए, जिसमें मशवरा किया जाए। सादा अल्फाज में अवाम की राय को अहमियत दी जाए। तो ऐसा निज़ाम, ऐसा मुल्क जिसमें अवाम की राय को अहमियत दी जाए, हर काम मुशावरत से, मशवरे से किया जाए, उसको कहते हैं जमहूरियत। और ऐसी अक़दार को, ऐसी वैल्यूज़ को जमहूरी अक़दार कहा जाता है। और जमहूरी अक़दार का फ़रोग़ नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। इस्लामी रियासत और माशरे की बुनियाद मुशावरत है, यानी मशवरा करना। इस्लामी माशरे में जमहूरियत को फ़रोग़ हासिल होता है, जिससे अवाम के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। अफराद में रंग व नस्ल, ज़ात पात या ज़ुबान की बुनियाद पर कोई तमीज़ रवा नहीं रखी जाती। हुकूमती निज़ाम सब लोगों की भलाई को पेश नज़र रख कर चलाया जाता है। यहाँ बच्चों, आप कायद-ए-आज़म का एक कौल है, वो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि
आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फराहम करें। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बहम सलाह मशवरे से तय करें। उसके बाद क्या है? उसके बाद है शहरियों के फ़राइज़, शहरियों के हकूक़, जिसमें हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से बात की गई है और ये नज़रिया पाकिस्तान के अज़ाय तरकीबी में शामिल है। तो बच्चों, इस्लामी रियासत में शहरियों को भरपूर हकूक़ व फ़राइज़ दिए जाते हैं। हकूक़ व फ़राइज़ लाज़िम व मलज़ूम हैं। जब भी हक़ की बात आएगी तो फ़र्ज़ की बात साथ आएगी। मसलन जो एक शख्स के हकूक़ हैं वो दूसरे शख्स के फ़राइज़ हैं। अगर हमें अपने हकूक़ चाहिए तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे, और अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि हम किसी का हक़ मार रहे हैं, हक़ अदा नहीं कर रहे, और उसके मुकाबले में हमें हकूक़ भी नहीं दिए जाएंगे। इस्लामी रियासत में शहरियों को भरपूर हकूक़ व फ़राइज़ दिए जाते हैं। हकूक़ व फ़राइज़ लाज़िम व मलज़ूम हैं। क़याम पाकिस्तान की ग़र्ज़ ये भी थी कि इंसानों को बराबर हकूक़ मिलें, इसलिए अक़लियतों के हकूक़ और इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच भी नज़रिया पाकिस्तान में शामिल थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़िया कर दिया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब अक़लियत और अक्सरियत में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि अक़लियत से मुराद चंद, कलील, थोड़े, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनॉरिटी, और अक्सरियत से मुराद ज़्यादा मक़दार में, ज़्यादा तादाद में, इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी। अब एग्ज़ाम्पल देखें, मिसाल देखें कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं और पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है। अब यहाँ जो भी इस्लाम पर कारबंद होगा और इस पाकिस्तान मुसलमान होगा, वो मेजॉरिटी में शामिल है, अक्सरियत में शामिल है। अब मेजॉरिटी अक्सरियत के मुकाबले में पाकिस्तान में वो गैर मुस्लिम जो यहाँ रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई वग़ैरह या बुद्ध मत के पैरोकार, ये अक़लियत कहलाते हैं। इसी तरह इंडिया की बात करें तो वहाँ हिंदू अक्सरियत में हैं तो वो मेजॉरिटी अक्सरियत कहलाएंगे, और वहाँ मुसलमान मिनॉरिटी यानी अक़लियत कहलाएंगे। तो इस्लाम की सूरत में भी ये इजाज़त नहीं देता कि इस्लामी माशरे में ज़िंदगी गुजारने वाली अक़लियतों के जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए। क़याम पाकिस्तान दर हकीकत इस्लामी माशरे के क़याम की तरफ एक बड़ा अहम कदम था, ताकि मुसलमान अपनी मजहबी असूलों के मुताबिक रोज़मर्रा इज्तिमाई और इनफ़रादी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद है माशरती इंसाफ़ व मुसावात के अदल मुसावात और माशरती बहबूद के तगाज़ों को पूरा करना भी नज़रिया पाकिस्तान के अज़ाय तरकीबी में शामिल है। रियासत में तमाम अफराद के लिए मुसावी कानून और यकसां अदालती निज़ाम कायम करना अज़ाय तरकीबी में शामिल है। उसके बाद है अख़ुवत यानी भाईचारा। इस्लाम अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है कि दीन इस्लाम में तमाम लोग जहाँ भी मौजूद हों, वो इस्लाम के लिहाज से, इस्लाम की बुनियाद के हवाले से एक दूसरे के भाई हैं। भाईचारे से मोहब्बत, खलूस, कुर्बानी, एहसान और शफ़क़त में इजाफ़ा होता है। कानून की हुक्मरानी के हवाले से इस्लाम के इज्तिमाई निज़ाम की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत भी शामिल है। उसकी बुनियाद पर इस तस्वुर पर है कि कानून का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। इस हवाले से रवादारी आखिरी जो है वो अज़ाय तरकीबी का हिस्सा है। रवादारी का मतलब है दूसरों को बर्दाश्त करना। मैं रिपीट करता हूँ, रवादारी का मतलब है दूसरों को बर्दाश्त करना। इस्लाम गैर मुसलमानों से रवादारी का दर्स देता है। इस्लाम में तमाम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के मज़हब का ख्याल रखते हैं, एहतराम करते हैं। रवादारी को कायम करना पाकिस्तान के क़याम का अहम मकसद है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको समराइज़ करते हैं। हमने पढ़ा नज़रिया का मानी मफ़हूम, नज़रिया पाकिस्तान का मानी व मफ़हूम, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन के नज़रियात और नज़रिया पाकिस्तान के अज़ाय तरकीबी। अब जो आपके ज़हन में सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं।